اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام فوج کو سامنے کا حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ رومی سالار حیران ہوئے ہوں گے کہ مسلمان سالاروں کا دماغ جواب دے گیا ہے کہ انہوں نے ایک ہی بار ساری فوج حملے میں جھونک دی۔ رومیوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ مسلمانوں کے گھڑ سوار دستے حملے میں شریک نہیں۔ رومیوں کو یہ سب کچھ دیکھنے کی فرصت ہی نہ ملی، کیونکہ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق بہت ہی تیز حملہ کیا جا رہا تھا۔ رومیوں کی بہت سی نفری ہلاک اور شدید زخمی ہو چکی تھی، پھر بھی ان کی نفری مسلمانوں کی نسبت سے گنا تھی۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی ہوا۔ اتنی کم نفری کا اتنی بڑی تعداد پر حملہ خودکشی کے برابر تھا۔ رومی سالار ماہان چلا رہا تھا، آنے دو انہیں اور آگے آنے دو، یہ ہمارے ہاتھوں مرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ 8000 سواروں کو پیچھے لے جا کر رومیوں کے بائیں پہلو سے پرے لے گئے۔ انہوں نے سالار عمر بن العاص سے کہا کہ رومیوں کے اس پہلو پر تیز اور زوردار حملہ کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور جانیں لڑا دیں۔ خالد رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ دشمن کو پہلو کے دستوں کے سامنے سے الجھا لیا جائے۔ عمر بن العاص نے خالد رضی اللہ عنہ کا مقصد پورا کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے 8000 سواروں میں سے 2000 سواروں کا ایک دستہ الگ کر دیا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن کے پہلو کے دستے عمر بن العاص کے دستوں سے الجھ گئے ہیں تو 6000 سواروں کے ساتھ رومیوں کے پہلو والے دستوں کے خالی پہلو کی طرف حملہ کر دیا۔ رومیوں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنے حملوں میں شدت پیدا کر دی۔ دشمن کے انہی دستوں پر سامنے سے شرحبیل رضی اللہ عنہ نے بھی حملہ کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جن 2000 سواروں کو الگ کیا تھا انہیں حکم دیا کہ وہ دشمن کے اس سوار دستے پر حملہ کریں جو اپنے پہلو کے دستوں کی مدد کے لیے تیار کیا تھا۔ ان 2000 سواروں کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ دشمن کے سوار دستے کو روک رکھیں، یعنی حملہ شدید نہ کریں بلکہ دشمن کو دھوکے میں رکھیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ رومیوں کا یہ سوار دستہ خاص طور پر تیار کیا گیا تھا۔ اسے ہر اس جگہ مدد کے لیے پہنچنا تھا جہاں مدد کی ضرورت تھی۔ مسلمان سواروں نے اس سوار دستے کو اس طرح الجھایا کہ حملہ کرتے اور پیچھے یا دائیں بائیں نکل جاتے، پینترا بدل کر پھر آگے بڑھتے اور ہلکی سی جھڑپ لے کر ادھر ادھر ہو جاتے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی یہ چال کارگر ثابت ہوئی۔ انہوں نے دشمن کے مقابلے میں اتنی کم تعداد کو ایسی عقل مندی سے استعمال کیا تھا کہ دشمن کے پہلو کے دستوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ان دستوں کو توقع تھی کہ مشکل کے وقت سوار دستے مدد کو آ جائیں گے، لیکن مدد کو آنے والے سواروں کو خالد رضی اللہ عنہ کے 2000 سواروں نے آنکھ مچولی جیسی جھڑپوں میں الجھا رکھا تھا۔ دشمن کے پہلو کے دستے ایک بار پیچھے ہٹے تو خالد رضی اللہ عنہ نے 6000 سواروں سے حملے میں شدت پیدا کر دی۔ ماہان نے خود آ کر اپنے دستوں کو جم کر لڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کا سوار دستہ بری طرح بکھرنے اور پیچھے ہٹنے لگا۔ پیادہ دستے سوار دستوں کی مدد کے بغیر لڑ نہیں سکتے تھے، وہ بے طرح بکھرنے اور بھاگنے لگے۔ بھاگنے والے پیادہ دستے آرمینی تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان کے بھاگنے کی ایک وجہ تو مسلمانوں کے سوار دستے کا حملہ تھا اور ان پر سامنے سے بھی بہت زیادہ دباؤ پڑ رہا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آرمینی سالاروں نے محسوس کیا کہ انہیں دانستہ سواروں کی مدد سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ان کے پیچھے عیسائی عرب تھے جن کا سالار جبلہ بن الاحم تھا۔ انہوں نے بھی رسالے کی مدد نہ آنے کو غلط سمجھا اور لڑنے سے منہ موڑ گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ آرمینیوں اور عیسائیوں کی پسپائی بھگدڑ کی مانند تھی۔ مورخوں نے اسے سیلاب بھی کہا ہے، جس کے آگے جو کچھ بھی آتا ہے سیلاب اسے اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ رومیوں کے بائیں پہلو سے بھاگنے والوں کی تعداد 40,000 بتائی گئی ہے۔ 40,000 انسانوں کی بھگدڑ ایسا بے قابو سیلاب تھا جو اپنے سالاروں کو بھی اپنے ساتھ بہا لے گیا، یہاں تک کہ سالار اعلی ماہان جو ابھی میدان نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اپنے محافظوں سمیت اس سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا اور بہتا چلا گیا۔ یہ کامیابی خالد رضی اللہ عنہ کی عسکری دانش کا حاصل تھی۔ انہوں نے دشمن کے پیادوں کو سواروں کی مدد سے محروم کر دیا تھا اور سواروں سے پیادوں پر حلہ بول دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے آگے بڑھنے کا رخ ماہان اور اس کے 2000 سوار محافظوں کی طرف تھا۔ ادھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور یزید بن ابی سفیان نے اپنے سامنے کے دستوں پر اس انداز سے حملے کیے کہ بھرپور لڑائی بھی نہیں لڑتے تھے اور پیچھے بھی نہیں ہٹتے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دشمن کے ان دستوں کو روکا ہوا تھا جو زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ یہ دستے تیزی سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ دشمن کے اس رسالے کو جس نے سارے محاذ کو مدد دینی تھی بکھیر کر بھگا چکے تھے۔ اس رسالے کو کھل کر لڑنے کا
का मौका ही न दिया गया था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अब अपने रिसाले के साथ रूमियों के अक़ब में चले गए थे। उन्होंने अक़ब से हमला कर दिया। ये रूमी फौज का दूसरा हिस्सा था। उस पर अपने बाएं पहलू के दस्तों और सवार दस्तों के भागने का बहुत बुरा असर पड़ चुका था। महान के गायब हो जाने की वजह से मरकजियत भी खत्म हो गई थी। अब सालार अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। वो अब सिर्फ दिफा में लड़ सकते थे। किसी भी फौज का बड़ा हिस्सा भाग निकले और कुमक की उम्मीद न रहे तो इस सूरत में यही हो सकता है कि अपनी जानें बचाने के लिए लड़ा जाता है और मौका मिलते ही पसपाई इख्तियार की जाती है। रूमी लश्कर के लिए ये सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुश्मन के भागने के रास्ते रोक लिए थे सिवाय एक के। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की भी यही कोशिश थी कि रूमी उसी रास्ते से भागें। चुनाचे दुश्मन के भागने वाले दस्ते उसी रास्ते पर जा रहे थे। रूमी फौज भी पसपा हो रही थी लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से। उसका कुछ हिस्सा भगदड़ में बह गया था। ज्यादा तादाद मुनज़्ज़म अंदाज से पसपा हुई। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस तमाम इलाके की जमीन को दूर दूर तक देख लिया था और उन्होंने उस जमीन से फायदा उठाने के लिए और जो कुछ सोच लिया था वो किसी आम दिमाग में नहीं आ सकता था। रूमी लश्कर जब भाग रहा था तो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म से उनके दस्ते भागने वालों का ताक़ुब करके एक खास तरफ जाने पर मजबूर कर रहे थे। उस तरफ वादी और रिकाद थी जिसमें एक नदी बहती थी और उस वादी के खद्दुखाल कुछ इस तरह थे। वादी इर्द गिर्द की जमीन से गहराई में चली जाती थी। उसकी एक तरफ की ढलान तो ठीक थी लेकिन उसके बिलमुकाबिल की ढलान ज्यादातर सीधी थी। वहां से ऊपर तो चढ़ा जा सकता था लेकिन बहुत मुश्किल से। रूमी फौज के बाकायदा दस्ते उस तरफ चले गए थे। उनके सामने एक यही रास्ता था। वो आसान ढलान उतर गए और उन्होंने नदी भी पार कर ली। जब वो दूसरी ढलान चढ़ने लगे तो मुश्किल पेश आई। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चले गए। अचानक ऊपर से नारे बुलंद हुए और ललकार सुनाई दी। नारे लगाने वाले मुसलमान सवार थे और उनके सालार ज़र्रार बिन अल अज़वर थे। उनका जिस्म नाफ के ऊपर से नंगा था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने रात को जो मंसूबा बनाया था उसके मुताबिक उन्होंने उसी वक्त ज़र्रार को 500 सवार देकर वादी और रिकाद के दूसरे किनारे पर भेज दिया और अच्छी तरह समझा दिया था कि उन्हें क्या करना है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। रूमी फौज की दरअसल कोशिश यही थी कि ताक़ुब में जो मुसलमान आ रहे हैं उनसे बहुत फासला रखा जाए, इसलिए वो बहुत जल्दी में जा रहे थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ताक़ुब इसी मकसद के लिए जारी रखा था कि रूमी फौज जल्दी में रहे। इस मकसद में कामयाबी यूं हुई कि रूमी ऊपर गए तो ऊपर ज़र्रार के 500 सवार बर्छियां ताने खड़े थे। रूमी जो ऊपर चले गए वो मुसलमानों के हाथों मारे गए और जो अभी ऊपर जा रहे थे वो पीछे मुड़े, लेकिन उमूदी किनारे से वो तेजी से नहीं आ सकते थे। मुसलमानों ने उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए जो उन्होंने इसी मकसद के लिए इकट्ठे कर रखे थे। ऊपर वाले गिरते और लुढ़कते हुए नीचे जाते थे। ऊपर से उन पर वजनी पत्थर गिरते थे। उनमें घुड़सवार भी थे। घोड़े भी गिरे और प्यादे उनके नीचे आकर मरने लगे। रूमी कुछ कम तो न थे। अभी एक बड़ी तादाद नदी तक न पहुंची थी। रूमी सालारों ने अपने आगे जाने वालों की तबाही देखी तो अपने दस्तों को आगे जाने से रोक दिया और वादी में उतरने की बजाय उन्हें ऊपर सफारा कर दिया। वो लड़कर मरना चाहते थे। आर्मीनियों और ईसाई अरबों की भी कुछ नफरी उनसे आ मिली थी। ये नफरी भाग रही थी और मुसलमान उन्हें वादी की तरफ ले आए थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी फौज के साथ थे। उन्होंने दुश्मन को सफ आरा देखा तो अपने सालारों को बुलाकर कहा कि दुश्मन पर हमला कर दें। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, इनमें लड़ने का दम नहीं रहा, सीधा हमला करो, मेरे हुक्म का इंतजार न करना। इनके लिए पीछे हटने की जगह नहीं है। एक तरफ दरिया है, दूसरी तरफ गहरी वादी है, सामने हम खड़े हैं, इन पर हल्ला बोल दो। रूमी फंदे में आ गए थे। उनका लड़ने का जज्बा पहले ही खत्म हो चुका था। बाज़ मौरखों ने मुसलमानों की तादाद 30,000 और 2 ने उससे कुछ कम लिखी। शहादत और शदीद जख्मियों की वजह से नफरी कम हो गई थी। एक दस्ते को औरतों और बच्चों की हिफाजत के लिए पीछे छोड़ दिया गया था। मुसलमानों ने हमला कर दिया। इसमें कोई चाल न चली गई। इस हमले का अंदाज टूट पड़ने जैसा था। सवार और प्यादे गड़बड़ हो गए थे। रूमी अब जिंदगी और मौत का मार्का लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। वो तो तरबियत याफ्ता फौज थी। उस फौज की अगली सफ ने मुसलमानों का जमकर मुकाबला किया, लेकिन वो जगह ऐसी थी जहां दाएं बाएं होने और घूम फिर कर लड़ने की गुंजाइश नहीं थी। इस वजह से रूमी अपने ही साथियों के साथ टकराने और एक दूसरे के लिए रुकावट बनने लगे। ये सूरत हाल मुसलमानों के लिए सूदमंद थी। रूमियों की अगली सफ ने मुकाबला तो किया, लेकिन उसका कोई एक भी आदमी जिंदा न रहा। मुसलमान सवारों ने रूमी प्यादों पर घोड़े चढ़ा दिए और उन्हें सही मानों में कुचल डाला। जहां जगह कुछ कुशादा थी वहां रूमियों ने मुकाबला किया, लेकिन मौरखों के मुताबिक यूं भी हुआ कि गर्द गुबार में रूमियों ने रूमियों को ही काट डाला। अपने पराये की पहचान न रही।
ये बड़ा खौफनाक मार्का था, बड़ी भयानक लड़ाई थी। ये रूमियों, ईसाई अरबों और उनके इत्तेहादी कबीलों का कत्लेआम था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की ललकार, घोड़ों को उठाकर उन पर गिराओ, मोमिनीन कुफर की चट्टानों को पीस डालो। मुसलमान सवार बागों को झटका देते तो घोड़े अपनी अगली टांगे उठा लेते, और जब घोड़े टांगे नीचे लाते तो एक दो रूमी कुचले जाते। ये तो रूमियों का कत्लेआम था। रूमी वादी और रिकाद की तरफ भाग रहे थे, जहां वो अगले उमूदी किनारे की एक घाटी चढ़ते तो जर्रार के सवारों की बर्छियों से छलनी होते और ऊपर से लुढ़कते हुए नीचे आते। मुसलमानों ने इस फतह के लिए बहुत सी जानें कुर्बान की थीं, और जो शदीद जख्मी हुए थे उनमें कई एक सारी उम्र के लिए माजूर हो गए थे। ये जंग मुसलमान औरतें भी लड़ी थीं। औरतों ने अपने भागते मर्दों को धमकियां देकर भागने से रोका था। अब वो दुश्मन जो इस्लाम को हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से 1.5 लाख का लश्कर लाया था, बड़े बुरे फंदे में आ गया था। वादी और रिकाद उसके लिए मौत की वादी बन गई थी। अल्लाह ने मोमिनीन की वो दुआएं कबूल कर ली थीं जो वो रातों को जाग जाग कर मांगते और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते रहे थे। वो एक आयत का विर्द करते रहे थे। इरशाद बारी ताला है, कितनी ही बार छोटी छोटी जमातें अल्लाह के चाहने से बड़ी बड़ी जमातों पर गालिब आई हैं। अल्लाह सब्र और इस्तिकामत वालों का साथ देता है। अब मैदान जंग की ये कैफियत हो चुकी थी कि रूमियों की चीखें उठती थीं जो मुसलमानों के नारों में दब जाती। वादी में गहरी खाइयां भी थीं। बाज रूमी उनमें भी गिरे और बड़ी बुरी मौत मरे। जंगी यरमुक के छठे और आखिरी रोज का सूरज मैदान जंग के गर्द गुबार में डूब गया। फजा खून की बू से बोझल थी। मशलें जल उठी और रूमियों की लाशों के दरमियान घूमने फिरने लगी। ये मुसलमानों की मशलें थी। वो अपने शहीदों और शदीद जख्मियों को उठा रहे थे और माल गनीमत भी इकट्ठा कर रहे थे। खैमागाह में खबर पहुंची तो औरतें आ गईं। वो कई मील फासला तय करके आई थी। वो अपने खावंदों को, भाइयों और बेटों को ढूंढ रही थी। किसी न किसी औरत की आवाज सुनाई देती थी, तू जन्नती है, तू जन्नत में जा रहा है। जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की जंग अभी जारी थी। रात भर मुजाहिदीन शहीदों, जख्मियों और माल गनीमत में मसरूफ रहे, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की मसरूफियत कुछ और थी। उनके लिए जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने जो रूमी कैदी पकड़े थे उनसे खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मालूम कर रहे थे कि उनका सालार आला माहान, जो आर्मीनिया का बादशाह भी था, किस तरफ गया है। बेशतर कैदियों को मालूम न था। आखिर पता चल गया, माहान को अंताकिया की बजाय दमिश्क की जानिब जाते हुए देखा गया था। उसके साथ उसका मुहाफिज सवार दस्ता भी था जिसकी तादाद 2000 थी। सुबह होते ही खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने सवार दस्ते को साथ लेकर माहान के ताकुब में रवाना हो गए। उस वक्त माहान दमिश्क से 10-12 मील दूर पहुंच चुका था। उसे ये तवक्को नहीं थी कि मुसलमान उसके ताकुब में पहुंच जाएंगे। शायद इसलिए वो बड़े इत्मीनान से जा रहा था। उस रात उसने पड़ाव किया और सुबह दमिश्क को रवाना हुआ था। उसे अपने किसी साथी ने कहा, सालार मौसम, वो देखें गर्द उड़ रही है, ये कोई सवार दस्ता लगता है। माहान ने कहा, अपना ही होगा। उनकी गर्द को न देखो जो मैदान जंग की गर्द से भाग आए हैं, ये शिकस्त खाकर आए हैं। उनके दरमियान फिर खामोशी छा गई। माहान की ज़हनी कैफियत बहुत बुरी थी। वो किसी के साथ बोलता नहीं था। उसकी अफसरदगी का बायस सिर्फ ये नहीं था कि उसने शिकस्त खाई थी, बल्कि ये कि उसने बड़ी थोड़ी तादाद की फौज से शिकस्त खाई थी। उसने मुसलमानों को कुचल कर वापस आने का दावा किया था, मगर अब वो अंताकिया जाने की बजाय दमिश्क की तरफ जा रहा था। अंताकिया में शहनशाह रोम था। माहान उसका सामना नहीं करना चाहता था। जिन सवारों की गर्द नजर आई थी, अब उनके घोड़ों के कदमों की हंगामा खेज आवाज सुनाई देने लगी, जो बड़ी तेजी से करीब आ रही थी। माहान पीछे नहीं देख रहा था। वो उन्हें मैदान से भागे हुए सवार समझ रहा था। सवार करीब आए तो 2 हिस्सों में बट गए और उसके गिर्द घेरा डालने लगे। उसके साथ ही एक ललकार सुनाई दी, अना फारिस अल जदीद, अना खालिद बिन अल वलीद। तब माहान चौंका। उसके साथ अपने 2000 सवार मुहाफिज ही नहीं थे, बल्कि आर्मीनिया की बाकायदा फौज की भी कुछ तादाद थी और कुछ ईसाई अरब भी थे। उसने उन सब को लड़ने की तरतीब में कर दिया और खुद अपने चंद एक मुहाफिज साथ लेकर अलग हट गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया गया था कि माहान के साथ अपने मुहाफिजों का सवार दस्ता है, लेकिन उसके साथ उससे दुगनी से भी कुछ ज्यादा तादाद थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने घेरे की शक्ल में हमला किया। माहान की फौज ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन मुसलमान थके हुए होने के बावजूद ताज़ा दम लगते थे। ये फतह की खुशी का असर था। तारीख में उस मुजाहिद का नाम नहीं मिलता जो लड़ाई में बचता बचाता माहान तक जा पहुंचा। वो माहान के सवारों का हिसार तोड़ गया
और उसने माहान को हलाक कर दिया। मुजाहिद खुद भी जख्मी हुआ, लेकिन माहान को हलाक करके उसने अपने साथियों का काम आसान कर दिया। अपने शहंशाह और सालार आला को मरता देखकर उसके सवार मार्के से निकलने लगे। कुछ देर के बाद दुश्मन के सवार और प्यादे जिधर को रुख हुआ उधर को भाग निकले, लेकिन बहुत सी लाशें और अच्छे भले घोड़े छोड़ गए। दमिश्क दूर नहीं था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दमिश्क का रुख कर लिया। ये उनका एक और दलेराना इक़दाम था। दमिश्क पर मुसलमानों का कब्जा रहा था, लेकिन रूमियों के इतने बड़े लश्कर को देखकर मुसलमानों ने दमिश्क से कब्जा उठा लिया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, दमिश्क के दरवाजे अब भी हमारे लिए खुल जाएंगे। तवक्को नहीं थी कि ऐसा होगा। हो ही नहीं सकता था कि मुसलमानों के चले जाने के बाद भी रूमियों ने उस अहम शहर पर अपना तसल्लुत न जमाया हो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में जब मुसलमान सवारों का दस्ता दमिश्क पहुंचा तो दीवार के ऊपर से किसी ने पूछा कि तुम लोग कौन हो? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या तुमने नहीं पहचाना कि ये तुम्हारे हाकिम थे? लेकिन हुकूमत तुम्हारी थी। क्या तुम न कहते थे कि रूमियों से मुसलमान अच्छे हैं? खुदा की कसम, हम रूमियों को हमेशा के लिए खत्म कराए हैं। एक नारा दीवार के ऊपर से बुलंद हुआ, मुसलमान आ गए, मुसलमान आ गए। फिर ये नारा सारे शहर में फैल गया। शहर का बड़ा दरवाजा खुल गया और शहरियों का एक बड़ा रेला बाहर निकला। लोगों ने बाजू फैलाकर मुसलमानों का इस्तकबाल किया और खुशी से नाचते हुए खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके सवार दस्ते को शहर में ले गए। ये उस अच्छे सुलूक और बर्ताव का नतीजा था जो मुसलमानों ने अहले दमिश्क से किया था। मुसलमानों ने तो किरदार की बुलंदी का ये मुजाहरा किया था कि दमिश्क से रुखसत होने से पहले शहरियों से वसूल किया हुआ जिजिया वापस कर दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दमिश्क में नहीं रुक सकते थे। उन्हें यरमूक पहुंचना था और फतह के बाद के उमूर और इंतजामात देखने थे। वो उसी वक्त रवाना हो गए। शाम से रूमी सल्तनत का बोरिया बिस्तर गोल हो गया। चंद दिनों के बाद शहंशाह हरकल अंताकिया से रुखसत हुआ। उसका ठिकाना अब कुस्तुनतुनिया था। दो मौर्रिखों बिलाजरी और तबरी ने लिखा है कि शहंशाह हरकल जब अंताकिया से रवाना हुआ तो उसने कुछ दूर जाकर रुककर और फिर पीछे मुड़कर देखा। उसने आह लेकर बोझल सी आवाज में कहा, ऐ अर्ज़े शाम, इस बदनसीब का आखिरी सलाम कबूल कर जो तुझसे जुदा हो रहा है। अब रूमी इधर आए भी तो उन पर तेरा खौफ सवार होगा। कितना खूबसूरत मुल्क दुश्मन को दिए जा रहा हूँ। जंग यरमूक पर हर दौर के मुबस्सिर ने कुछ न कुछ लिखा है। इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि ये जंग खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की अक्ल से जीती गई थी और ये कामयाबी कारगर चालों से हासिल की गई थी। इस जंग में 4000 मोमिनीन शहीद हुए थे और जख्मी तकरीबन सभी हुए थे। खुद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु भी जख्मी थे। रूमियों की अमवात 1 लाख से ज्यादा बताई गई हैं, लेकिन मौरिखों की अक्सरियत 70,000 पर मुत्तफिक है। सल्तनत इस्लामिया शाम तक फैल गई। वो तादाद में बहुत थोड़े थे। उनके हथियार दुश्मन के मुकाबले में कमतर थे। उनके जराए यूं महदूद थे कि अपने वतन से बहुत दूर थे। कुमक नहीं मिल सकती थी। उसका हुसूल दुश्वार था। दुश्मन मानंद टिड्डी दल था। उसके हथियार बरतर थे। वो उसकी अपनी जमीन थी। मुल्क अपना, कले अपने थे। कुमक की उसके यहाँ कमी नहीं थी। अपनी बादशाही में से हजारों की तादाद में लड़ने वाले लोगों को मैदान में ले आता था, लेकिन वो जो तादाद में थोड़े थे और वो जो कई कई सालों से मुसलसल लड़ रहे थे, उस दुश्मन के सीने पर खड़े थे जो उनसे कहीं 3 गुना और कहीं 4 गुना ज्यादा ताकतवर था। वो कौन थे जिन्होंने उस दौर के सबसे ज्यादा ताकतवर दुश्मन को फैसला कुन शिकस्त दी थी? वो सहाबाए कराम थे। वो ताबेइन थे। वो नाम के मुसलमान नहीं थे। वो जंगी ताकत को आदमियों और घोड़ों की तादाद से नहीं, जज्बे और ईमान से नापते थे। ये ईमान की कुव्वत का करिश्मा था कि शाम में कैसर रूम का परचम उतर गया था। जिन कलों पर ये परचम लहराया करता था, उन कलों में से अब अजानें गूंज रही थी।